chapter is your number system. So that summarizes all the different numbers, है ना, हमने junior classes में पढ़ा है, integers, rational numbers and whole numbers, तो उन सब का summary है basically, and we are dealing mostly with irrational number in this chapter. हाँ जी, good evening Rihan. So क्या बता सकते हैं ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नंबर, नंबर को हम किस ब्रॉड कैटेगरी में मतलब रख सकते हैं, वेरी वेरी ब्रॉड कैटेगरी. हाँ जी एनीवन? हाँ जी बोलो सर. रैशनल एंड इरैशनल रियल नंबर्स. रैशनल एंड रियल नंबर्स, तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई सर. रियल नंबर्स सबसे बड़ी कैटेगरी होगी. रियल नंबर सबसे बड़ी कैटेगरी है. ओके वेरी गुड. ठीक है, तो कैन यू डिफाइन व्हाट आर रियल नंबर्स? सर रियल नंबर्स are numbers which can be expressed on a number line. Impressive, too good. Numbers which can be expressed on number line. So numbers which can be expressed on number line. ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़े से लड़के हैं तो थोड़ी सी लड़कियां हैं, है ना, तो ऐसे ही नंबर्स की एक कैटेगरी है कि कुछ नंबर्स हैं वो रियल नंबर हैं, तो कुछ नंबर्स फिर क्या होंगे हमारे Imaginary number. इमेजिनरी नंबर्स, है ना. सो वी हैव गॉट अनदर कैटेगरी दैट इज इमेजिनरी नंबर्स. तो रियल नंबर्स तो हमने डिफाइन किया ना, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन. सो इमेजिनरी नंबर्स ऑफ कोर्स वी कांट पुट देम ऑन नंबर लाइन, बट व्हाट एग्जैक्टली आर दीज इमेजिनरी नंबर्स? लेट्स से इफ आई एम सेइंग रूट ऑफ 9, है ना, रूट ऑफ 9 का मतलब है a number which when multiplied by itself will give me an answer 9. So this root of 9 is 3. When I am saying root of -4, so anyone, what can be root of -4? Sir, it should be I into 4. हाँ जी, root of -4 is, you cannot say -2. -2 गलत है, क्यों? -2 into -2 is +4. हाँ जी, that is 4. Very good. ठीक है, so root of -4 is nothing but I'll take it as root of -1 into 4. ठीक है, which is nothing but minus root of -1 into root of 4. ठीक है, ये जो root of -1 है इसको जो है we denote it as iota. ठीक है, so my answer will be 2 iota, है ना. ये हमारा imaginary numbers है, इसका सिर्फ इतना ही introduction है, rest will be dealing it within class. Sir, what is iota? Iota is denotion for imaginary numbers, that is iota is nothing but root of -1. Okay, okay. ठीक है, अभी हमारे जो चैप्टर में उस पे वापस आ जाते हैं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, तो टू कैटेगरीज इन विच रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड. Integers and fraction. Rational and irrational. Irrational. Rational and हाँ irrational. जी, these two categories, rational numbers and irrational numbers. ठीक है, irrational numbers कौन से है बेटा? हमारा जो √2 है, √3 है ना, और एनी अदर एग्जांपल, एनीवन? Sir, √5. √5, that will continue. What else? Sir, pi. Pi. What else? Sir, √11. √5, √11, है ना, all those root में जितने भी हमारे numbers होंगे, उनके अलावा pi is there. Sir, E Then is also there. E, Euler's constant. Yes. Then golden ratio. ठीक है, तो ये कुछ नई नई चीजें हैं. pi तो हमें पता है, तो pi is ratio between the circumference of a circle and its dia. जो E और phi है इसके बारे में आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे, स्पेशली phi से रिलेटेड यू विल पोस्ट सम आर्टिकल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, दैट्स गोल्डन रेशियो. Sir, what is theta? या थीटा नहीं है बेटा, ये phi है. ठीक है, दैट्स फॉर गोल्डन रेशियो. ठीक है, Okay. आप गोल्डन रेशियो सर्च करेंगे गूगल पर, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग है ना, कट पेस्ट नहीं है सच, है ना, कोई थोप थोप के नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू गोल्डन रेशियो. ठीक है, लेट्स डिस्कस व्हाट आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर्स जो है, नंबर्स व्हिच कैन बी, हाँ जी एनीवन? Expressed in the form of p by q. p by q, where
where q is not equal to 0. Q not equals to 0. This definition is incomplete. I'll give you 1 out of 2 marks. So where P and Q are both integers. Impressive Tanvi, है ना? Where P and Q both are integers, है ना? Integers के लिए symbol is Z. Right? So किसी भी नंबर को अगर आप P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q are integers and Q is not 0, then that's a rational number. So for example, ठीक है? Example is if I am saying let's say 3 by 11, is it rational? Yes. If I'm talking about let's say root 7 by 2, is it rational? Anyone? Sir, no. No. Why no? Sir, because root 7 is not an integer. It's an हाँ जी, irrational number. ये P by Q फॉर्म में तो है बट इंटीजर्स नहीं है ना, तो इसलिए ये रैशनल नहीं है हमारा. ठीक है, इम्प्रेसिव. इसी में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो है अनदर डेफिनेशन फॉर रैशनल नंबर. रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन तो बेटा आपने ये बताई, कोई और बताएगा एनी अदर डेफिनेशन? हाँ जी, हाँ जी. Another definition for rational number? A number with terminating decimal places. You have some fair idea, but you're not putting in right words. So this I will say is a number which in decimal form will either terminate. ठीक है, आप इसको लिख लें, फिर I'll explain on that, है ना? Which Yes, will sir. either terminate or will be non-terminating but repeating Yes, or sir. reoccurring. Sir, I just had a question. जी बेटा. सर अगर हमारे पास ऐसा एक डेसिमल है जैसे 0617 0617 और 0617 पूरा रिपीट हो रहा है तो वो एक रैशनल नंबर कंसीडर करा जाएगा या इरैशनल? Okay. अगर एक So सेट what- ऑफ सीरीज वो हो रही है रिपीट हो रही है 0.617 years 617 ऐसे जा रहा है हाँ जी, तो ऐसे ये जा रहा है. रैशनल कंसीडर होगा कि इरैशनल? हाँ देखो, अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा तो ये रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है ना. अगर डॉट 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 लगा और डॉट 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 किया तब भी ये रैशनल है. क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है अपने आप को. ओके सर, सो दिस इज कंसीडर्ड एज रिपीट. हाँ जी, दिस आई राइट डाउन एज 0.617 बार. बार मींस द थिंग्स विल कीप ऑन रिपीटिंग देम. यस सर. Sir, I didn't understand this definition. हाँ जी, I'll take Sir, examples, है ना, उसमें क्लियर हो जाएगा. Sir, I didn't understand like the termination and the हाँ non-termination जी, हाँ part. जी, जस्ट अ मिनट है ना, I'll explain on this. तो यहीं पर अगर हम इररेशनल की बात करेंगे बेटा, ठीक है, सो इररेशनल आप एक बार डेफिनेशन लिख ले, I'll explain on that. In decimal form will neither terminate nor reoccur. ठीक है जी, अब देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, एनी टाइम इफ यू हैव नॉट कॉपीड जस्ट लेट मी नो, है ना. आई विल वेट फॉर अ सेकंड मोर, अदरवाइज यू कैन यूज स्निपिंग टूल टू कट एंड पेस्ट फ्यू थिंग्स. हाँ जी, कॉपीड. तो लेट्स मेक, है ना, लास्ट ईयर की तरह. रौनक आप इंचार्ज हैं बेटा. वंस कॉपीड यू विल हैव टू लेट मी नो यू हैव कॉपीड दैट. Yes, sir, copied. ओके, सो इफ अगर मैं डेसिमल फॉर्म की बात करूं, है ना, इफ आई एम सेइंग लेट्स से 0.07123
2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये डॉट्स का मतलब है इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो ये जो नंबर है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, बट दिस नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ 2 3 2 3 2 3 2 3। ठीक है, सो दिस आई कैन राइट एज 0.0712 बार। दिस बार मीन्स इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, सो दो कंडीशन मीट होनी चाहिए, या तो टर्मिनेट हो, और टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रीअकर हो, देन इट इज कॉल्ड रैशनल। तो ये रैशनल होगा। ठीक है, लेट्स से इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल 0.052917 3418। हाँ जी, एनीवन? रैशनल और इरेशनल? Sir, Very rational rational. number. Rational number. दिस इज रैशनल क्योंकि यहाँ पर रीअकरेंस जो है वो मैंने इंडिकेट नहीं किया है कुछ भी, है ना, डॉट 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 करके नहीं डाला है, ये रीअकर नहीं हो रहे हैं, दैट मींस इट्स टर्मिनेटिंग हियर, ये यहीं पर खत्म हो रहा है ना। तो दिस इज योर रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो थर्ड केस कौन सा है, जहां पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है प्लस रीअकर भी नहीं हो रहा है। इफ आई एम सेइंग 3.147295614835099917। अब ये क्या है? ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही कहीं पर रीअकर हो रहा है ना। दैट्स व्हाट इज पाई। पाई इज द रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डाया ऑफ अ सर्कल। वो रेशियो दे हैव फाउंड टिल 2 millionth डिजिट एंड दे फाउंड कि इट्स नाइदर रीअकरिंग एंड नॉर टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो दिस इज योर इररेशनल नंबर। ये आपका इररेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग √4, √4 is 2 into 2, that is 4, you know, that's what is √4. but when I am interested in √2, तो √2 में बेटा मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? वो नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। so this I found is when I am doing 1.4140 into 1.4140, this is coming as 1.99160 है ना, let's say something like that, but 2 तो नहीं आया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा और आगे जाऊंगा, 1.41424718 इंटू 1.41424718, ये 1.99992464। हेलो जी, ये तो अभी भी 2 नहीं आया एग्जैक्टली, है ना। सो इफ आई कीप ऑन अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट नंबर कि उनका उसका आपस में प्रोडक्ट करके 2 आ जाए, तो वो नंबर मैं कभी अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वो जो आंसर है दैट विल बी योर irrational. Why irrational? Because this answer is neither terminating nor reoccurring, है ना। ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, reoccur भी नहीं कर रहा है, तो ये irrational है। ठीक है, agreed on this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. चलो, Excuse me, आप- sir. हाँ जी बेटा। Sir, rational numbers are terminating numbers. हाँ जी, रैशनल दो चीजें हैं बेटा। रैशनल आइदर दे विल टर्मिनेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन इट्स टर्मिनेटिंग, है ना, और दे विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, वापस वापस रीअकर हो रहा है। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में देख लेते हैं एक बार, है ना। अगर तो मैं any- पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर लेता हूं, कोई भी नंबर, तो वो या तो टर्मिनेट करेगा, ठीक है, और अदरवाइज वो रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग लेट्स से 2/3, है ना, 2/3 क्या रैशनल है? हाँ जी बिल्कुल, पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो रैशनल है। और इन केस ऑफ डिवीजन आप डिवाइड करके देख लें ऐसे, है ना, तो दिस इज 0. सो ये आपका 18, है ना, सो दिस इज 226666666, है ना, लाइक दैट इट विल कीप गोइंग। बट ये कभी भी जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना, हर बार जो है ये 6 ही आता जा रहा है। ठीक है, सो 2/3 इज 0.6 बार। जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में देखेंगे तो हम सिर्फ देख रहे हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में और इंटीजर होना चाहिए।
जब हम डेसिमल फॉर्म में देख रहे हैं तो फिर हम दो चीजें देख रहे हैं, या तो टर्मिनेट करे भाई, और टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वो रिपीट करे, तो वो रैशनल है। हाँ जी, एग्रीड? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, अब इसमें जो आपका फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आता है, ठीक है, दैट इज, आप हेडिंग देंगे टू कन्वर्ट रैशनल नंबर्स फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर्स को। ठीक है, बट उससे पहले जो है, लेट मी जस्ट टेक अ क्विक एक्सरसाइज टू बी श्योर कि आपको डिफरेंस समझ में आए हैं रैशनल एंड इरेशनल के, एंड यू विल गिव योरसेल्फ मार्क्स एंड आई विल आस्क इट इन द एंड। चैट बॉक्स पर आप आंसर भेजेंगे यस और नो की फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट टेल मी इट्स रैशनल के लिए आर, इरेशनल के लिए आई आर, है ना, ये दो सिंबल्स आप यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन, लेट्स सी हु इज स्कोरिंग फुल मार्क्स इन दिस। ठीक है, whether rational or irrational, that you have to tell me. First one is 0.671935 bar. Rational or irrational? फटाफट, फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टू गुड। अल्लो जी, कोई कह रहा है सर सुपर इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, बट सभी ने करेक्ट किया, आई एम सरप्राइज। जन्नत, बता माइक तो। ऑफ करो। ठीक है, श्रेया, आपने थोड़ा सा आंसर गलत कर दिया है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो दिस इज रैशनल बिकॉज इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, सेकंड वन, रेडी, 0.101001001000100010, रैशनल और इरेशनल, आर और आई आर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सभी का करेक्ट है, वेरी गुड। देवेश, आपका गलत हो गया है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इम्प्रेसिव, टू गुड। ओहो, कुछ के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ जी, वेरी गुड। आई एम हाईली सरप्राइज्ड, मैक्सिमम के आंसर सही है, शायद स्कूल में चैप्टर चल रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर बेटा ये 10 है, ये 100, 1000, तो रिपीट तो अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है ना, मैं ऊपर बार कहीं पर लगा ही नहीं पा रहा हूँ कि किस पे जाकर मैं बार लगाऊं। ठीक है, सो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नाइदर रिपीटिंग, सो दिस इज इररेशनल। ठीक है, लेट्स रेज द लेवल, रेडी फॉर इट। आई एम इंटरेस्टेड इन रैशनल और इरेशनल, आई एम इंटरेस्टेड इन क्यूब रूट, नॉट क्यूब रूट है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन स्क्वायर रूट ऑफ 9। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फास्ट 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 फास्ट, 5 seconds मोर, करेक्ट, टू गुड टू गुड टू गुड। किसी ने लिखा सर लेवल आपने बोला तो सही, रेज ही नहीं किया, लेकिन ये भी इजी था बहुत, आई एग्री ऑन इट। वन मोर, क्यूब रूट ऑफ 9, वेरी गुड शाश्वत, करेक्ट एवरीवन। ओह वेरी फास्ट, दिव्यांश ने जल्दी जल्दी में आई आर की जगह ओ आर लिख दिया है, इम्प्रेसिव, टू गुड टू गुड, सभी का करेक्ट है, इरेशनल नंबर्स है ना। तो बहुत हो गए है ना, इधर उधर के पंगे लेने बहुत हो गए, अब थोड़ा सा हायर लेवल है ना, थोड़ा सोच सोच के करना, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग maybe 5 students will make the mistake in this one. Ready, first one, I'm interested in root of 45 upon root 5, rational or irrational? शांतनु, वेरी फास्ट, बट सभी का गलत आ रहा है, रॉन्ग 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 रॉन्ग, oh my god, first correct answer by Jannat and Anvi and Gurnur and Aditya and Ayan, very good, impressive। चलो, स्टार्टिंग के सारे रॉन्ग थे, बाद में सभी करेक्ट आ रहे हैं,
So give yourself 1 mark starting from this question. So this is root 45 is root 9 into 5 upon root 5. So this is root 9 into root 5 upon root 5. है ना? This gets cancelled. This answer is 3, which is rational. Here comes the second question for the quiz. ठीक है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रैशनल और इरेशनल. आई एम इंटरेस्टेड इन स्क्वायर रूट ऑफ 0.4. and Shantanu is wrong and Jyadita is correct, Shriyanshu correct, Jannat correct, and Aditya is wrong, Anvi wrong, Midhansh wrong. Okay, Arush wrong. थोड़ा सा you have to be careful. ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है वो इसको जो है 0.4 के रूट को दे आर टेकिंग एज 0.2, विच इज रॉन्ग. ये गलत है बेटा, है ना. रूट ऑफ 0.04, दिस इज 0.2. ठीक है, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे सर दिस इज रूट ऑफ 4/10, दिस इज रूट ऑफ 2/5, है ना. So this is root 2 by root 5. Both are irrational and this number is irrational. ठीक है, right. Let's see here. 617. Okay, square root of 2.25. Rational or irrational? हाँ जी रेहान, वेरी गुड. बट रेहान आपका गलत हो गया है. सो फर्स्ट आंसर बाय आरुष, फॉलोड बाय त्रिनव, श्रेयांशु, देवेश एंड जन्नत. इम्प्रेसिव. रोहन करेक्ट. हाँ जी. अरे सभी का करेक्ट आ रहा है, बट आधी दुनिया का आंसर नहीं आया अभी, तो आई थिंक दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग. तो बेटा जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसको आप ध्यान से दें. इसको अगर आप देखेंगे, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे लिख लें. दिस इज रूट ऑफ 225/100. 225 का रूट कितना होता है? 15. 100 का रूट 10 एंड दिस इज 1.5, है ना. 1.5 इज रैशनल नंबर. हाँ जी मिधांश करेक्ट. गुड, वेरी गुड. Okay, how about if I'll take it as 8th one? Let's say if I'm talking about 1.1712 bar minus 2.1734 bar. Rational or irrational? हाँ जी भाई, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल, है ना. एवरीवन हैज टू आंसर प्राइवेटली ऑन जेनिथ ट्यूटोरियल्स होस्ट. ठीक है, एवरीवन पर मत टाइप करें अपना आंसर, टाइप इट ऑन जेनिथ ट्यूटोरियल्स होस्ट. प्राइवेट आंसर करेंगे. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको इरेशनल लिख दिया है. ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़े से लॉज अपने डेवलप करेंगे. ठीक है, ये हमारा रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो प्लीज राइट डाउन ऑपरेशंस. ठीक है, रैशनल प्लस रैशनल इज रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल इज रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल नॉट जीरो इज रैशनल. ठीक है, रैशनल का कोई भी ऑपरेशन विल ऑलवेज गिव मी अ रैशनल नंबर. ठीक है, इररैशनल प्लस इररैशनल. एनीवन, क्या आंसर होना चाहिए? Sir, rational. Rational? Are you sure? This can be नहीं सर, क्योंकि rational उसकी or
इसकी अनएंडिंग स्पेसेस और डिजिट्स होंगे, तो डिजिट्स बस ऐड होके और ज्यादा डिजिट्स बन जाएंगे, तो वो अनएंडिंग ही रहेगा। Okay. How about if I'm saying minus pi? क्या ये रैशनल है, इरेशनल है? Anyone? इरेशनल है, पाई भी इरेशनल है तो माइनस पाई भी। एंड हाउ अबाउट पाई? पाई भी इरेशनल है। Irrational. ऐड किया तो पाई माइनस पाई विच इज 0 विच इज रैशनल, है ना? और लेट्स से इफ आई एम सेइंग 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 इज रूट 3 तो इरेशनल है, दैट विल बिकम 3.17 सॉरी 712 एंड समथिंग समथिंग समथिंग, है ना? 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, और जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, दिस इज 4 विच इज रैशनल। ठीक है? irrational minus irrational, it can be anything. ठीक है? Irrational into irrational. So if I am saying root 3 plus 2 plus root 2 ले लेते हैं, plus 2 ले लेते हैं, this is irrational. root 3 minus 2 ये भी irrational है, but इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो this is a plus b and a minus b, तो आंसर क्या होगा बेटा इसमें? a square minus b square. A square minus b square. So this is 3 minus 4 which is minus 1. So irrational into irrational, it can be rational or irrational. ठीक है? Irrational by irrational can be anything. सर तो irrational minus irrational can also be an imaginary number. Imaginary कैसे बताओ? Sir, I was asking because it is said नहीं, anything. नहीं. Anything means imaginary तो हमारा 11th में आएगा ना, मैंने आपको Yes, बता so दिया। सर रियल नंबर के अंदर कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। Okay, sir. अच्छा, आर जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ बेटा, है ना, बट रैशनल नंबर के लिए नोटेशन इज नॉट आर। ठीक है? आर इज फॉर रियल नंबर, बट अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आई एम यूजिंग दिस नोटेशन आर हियर। ओके, इफ आई एम सेइंग ऑपरेशन बिटवीन रैशनल प्लस इरेशनल, this will always be irrational. Rational minus irrational, always irrational. How about rational into irrational? Irrational. Irrational. Okay. Now here I am saying, देखो अगर कुछ भी किया मैंने 5 into root 3, this is 5 root 3, है ना? This is irrational. ठीक है? So this is irrational or rational. ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है कि ये रैशनल किस केस में है, थोड़ा सा डिकोड करके बताओ भाई मुझे। सर इनके 0 हो तो रैशनल। Yes, sir. Very good. Yes. Too good. I am starting falling in love with you. ठीक है? This batch is really good. So this rational is 0, irrational is root 3. But into करेंगे तो आंसर 0 which is rational. है ना? तो ये एक एक्सेप्शन कब है? When our rational part is 0, है ना? उस केस में ये एक्सेप्शन है। And rational divided by irrational, this is irrational. ठीक है? नोट कर लें आप इसे। Sir, what is irrational over rational? Irrational over rational is again irrational except when r is 0. Sir, not defined. Okay. हाँ जी। No. Okay. तो हम यहाँ पर थे टू कन्वर्ट रैशनल नंबर्स फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। अगर किसी ने मुझे बोला फाइंड
लेट्स से 4/9 है ना। मैं 4/9 बहुत आराम से फाइंड कर सकता हूँ डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में जो है दिस इज कमिंग एज, मैं अगर डिवाइड करूंगा 9 विथ 4, सो आई एम गेटिंग 0.4444 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो अदर वे है दैट इज व्हाट इज प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, अदर वे कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंटरेस्टेड इन convert 0.32 bar in fractional form है ना। 0.36 ले लेते हैं, 3939। ठीक है, चलो जी पे अटेंशन, कुछ नया टॉपिक है ना। कुछ स्टूडेंट लास्ट ईयर थे तो मैंने ये क्लास ली थी एक इसमें, बट अभी विल डिस्कस इट अगेन। One student is joining it wrong. Okay. रुद्र बेटा आप क्लास 8 में है ना? यस सर। तो बेटा अभी ये 9 चल रही है, 8 की कल होगी है ना। TTS को क्लासेस दिया 7 to 9। ठीक है, I'll inform you separately. ओके। Okay. So let, ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ना अगर मैथ्स में कहीं किसी क्वेश्चन में अगर जेनरिक अप्रोच हो जाए कि एक ही स्टाइल में आपको सॉल्व करना है, तो वो कॉन्सेप्ट या अप्रोच सबसे इजी होता है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत ही सिंपल और जेनरिक अप्रोच है। आप लेट कर रहे हैं, लेट x इज 0.39 बार। ठीक है, इसी को आप दोबारा ओपन कर रहे हैं, बट ये 39 आप दो बार लिखेंगे, 3939 बार है ना। बोथ द थिंग्स आर सेम ओनली। 39 तो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैं आगे वाले से रिपीट करना शुरू कर दूं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, सो अब ये जो डेसिमल है, दिस डेसिमल आई नीड टू शिफ्ट टू दिस पार्ट है ना। सो दिस इज 100x, 100x is 100x is 39.39 बार। बार। ठीक है, अब इसको आप वापस लिख लें, दिस थिंग ऑन टॉप एंड दिस थिंग इन बॉटम। सो दिस इज 100x is 39.39 बार, x is डेसिमल के नीचे डेसिमल है ना 0.39 बार। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, LHS में आई हैव गॉट 100 chocolates minus 1 chocolate, so I am left with 99x 99x is। RHS में देखो, ये डेसिमल के बाद 39 रिपीट हो रहा है, ये डेसिमल के बाद 39 रिपीट हो रहा है, चाहे 100 टाइम्स हो या इनफाइनाइट टाइम्स हो, डजंट मैटर है ना, एग्जैक्टली सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं दोनों। डेसिमल वाले पार्ट जो वो तो सेम है एग्जैक्टली, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो मेरे पास बचा 39 कितना? is left. 39 सिर्फ है ना। 39 minus 0 is 39. So x is 39/99. Therefore 0.39 bar is 39/99. ठीक है, this is what this chapter is about. Sir, I ये didn't आपका understand rational, this. हाँ जी, I'll take this. This is rational number in form of p/q. This is rational number in form of decimals where the digits are repeating. ठीक है, I'll take some more questions on this. पहले इसको नोट कर लें। So Ronak, let us know. Yes, Sir, sir, noted. copied. Okay, everyone copied? Yes. यस सर। इसी को फिर Yes, से sir. देखते हैं। ठीक है, Yes, sir. टॉपिक हमारा है फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल
टू फ्रैक्शन। तो मैं इसमें आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर हमारे पास जैसे क्वेश्चन है लेट्स से 6.231 बार, ठीक है, तो मेरा जो एम होगा, पहला एम होगा इस डेसिमल को यहाँ पर लेके आना, और दूसरा एम होगा इस डेसिमल को यहाँ पर लेके आना, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, पहले तो हम x मान रहे हैं इसको, x इज 6.231 बार। तो पहला इस डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? 10. Sir, 10. 10. So 10x is 62.31 बार, है ना, which is same as 62.3131 बार। अब इस डेसिमल को वापस हमें यहाँ शिफ्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करें? 100. Sir, Sir, 100. 100. तो दिस बिकम्स 1000, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इज 6231.31 बार, है ना। अब देखो बड़े में से छोटी चीज माइनस करनी होती है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको हम नीचे ले जाएंगे। सो वी हैव 1000x इज 6231.31 बार, 10x इज 62.31 बार, ठीक है। हैव अ लुक, मैं देखो मिस्टेक ना हो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, डेसिमल के नीचे डेसिमल, है ना, सो दैट थिंग्स बिकम्स इजियर। तो लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स, फास्ट फास्ट फास्ट, लेफ्ट साइड में कितना आएगा? एंड आई एम लुकिंग फॉर वन रॉन्ग आंसर, लेट्स सी हु इज गिविंग मी दैट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फास्ट 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 फास्ट, करेक्ट करेक्ट, ऑल करेक्ट। Oh no, I am going to lose one more. बहुत धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं और बाकी जो है डर के मारे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 990x इज, ठीक है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज योर 617969, ठीक है। सो x कितना हो गया बेटा हमारा? x इज 6169 डिवाइडेड बाय 990। Sir, if you've got the opportunity to maybe, if we can simplify the fraction, in that case, can we simplify and write the answer? हाँ जी, जहाँ पर फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होगा तो वहां पर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज यू लूज हाफ अ मार्क। Okay, sir. Done, done, done. Let's Sure. see. Yes. Sir, done. Yes, sir. Very good, very good. If I am interested in, I am taking one more question. Write 5.012121212 in decimal form. Sir, this is in decimal form. Oops, sorry, in fractional form. Let's ask who is going to help me out. Volunteers, raise your hand. Sir, may I? चलो जी, देवेश आप हेल्प कर रहे हो, पहला स्टेप। अपना अपना, Second, हाँ जी आप बोलो बेटा। sir, we will take x is equal to वेरी गुड, विल टेक x इक्वल्स टू दिस नंबर, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 5.012 बार। bar. Yes, sir. So then we will take 10x. We will take 10x is equal to is
ठीक है, 50.12 bar. हाँ जी, Then we will repeat. Then we'll take इसको हमने रिपीट how. कर, Yes, sir. हाँ जी, We will take 1000x is equal to 5012.12 bar. इम्प्रेसिव, वेरी गुड, नेक्स्ट, Then we'll take 1000x is equal to upwards and 10x is equal to 50.12 bar downwards. हाँ We will जी, subtract them and get the answer. इम्प्रेसिव, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज योर 4962 4962 and this over is 990. 90x. Yes, sir. So x is 4962 upon 990. 990. Sir, in this case, I think it can be simplified. हाँ जी बिल्कुल, 2 से तो कैंसिल ही हो रहा है, Yes, ठीक sir. है। Sir, और 3 से भी हो रहा है, 3 3 और से भी हो रहा है. 11, हाँ जी, 2 3 11 है ना, 3 फैक्टर चेक करने, you will get your simplified answer. एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो आपने हर स्टेप हर सम में एक लाइन ड्रॉ की है वो 990 एक्स के पहले, वो ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप दिखाएंगे कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। और सर अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो सिंपलीफाई करके आंसर लिखेंगे तो वो आंसर करेक्ट माना जाएगा। बिल्कुल वही आंसर करेक्ट होगा इनफैक्ट, है ना। आप ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर दें और फिर जो आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा आपका। सर अगर नहीं करेंगे तब भी करेक्ट होगा ना? अगर नहीं करेंगे तब भी करेक्ट है, बट फ्यू स्कूल्स टीचर विल डिडक्ट मार्क्स कि आपने सिंपलीफाई नहीं किया आंसर, है ना। तो यू शुड सिंपलीफाई वेयर एवर पॉसिबल। सर आंसर को हम लोग डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में नहीं बेटा, डेसिमल से तो फ्रैक्शन कन्वर्ट ही कर रहे हो। Sir, the simplified answer will be 827 over 161. वेरी गुड, ठीक है। एनी अदर डाउट? नो सर। No, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे विच वन इज बिगर, ए और बी। ए इज 0.9 बार, बी 0.99 बार। चैट बॉक्स ए और बी। वेरी गुड, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय शांतनु, फॉलोड बाय रियान, जयदित्या, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत आ रहा है। दे आर सेम, बिकॉज इसको जब आप ओपन करेंगे दिस इज 0.9999, 99 are getting repeated, this is 0.999, they are getting repeated, so both the numbers are exactly same. ठीक है, agreed? Yes, sir. Impressive, good to see, है ना। Yes, sir. half of you have answered correctly. Yes, Question, sir. Sir, इसका भी convert, chat box में लिखना है. हाँ जी, 0.9 बार in p by q form. नन्ना, आदित्य, life is not that easy, दोबारा करो।
Impressive. Jayaditya has done correctly. First answer, second by Ryan. श्रेया वापस चेक करो. 0 upon something is 0 only. So is my correct? हाँ जी. Arush, Ayan, correct. Shashwat, not correct. Ashna, do it again. Medhansh, correct. Very good. Divyansh, correct. Rohan, not correct. चलो जी भाई. देवेश, आपका भी सही नहीं है. रोहन, आप ही बताओ बेटा कैसे किया आपने. हाँ जी, तन्वी करेक्ट. गुरनूर, माइक पे आओ बेटा. यस सर. देखो बेटा, आपने आंसर दिया 99990 अपॉन 990, है ना. ये जो नंबर है ये डेफिनेटली जो है ये बहुत बड़ा नंबर है. और यहाँ पर ये जो नंबर है ये 1 से छोटा सा लग रहा है ना, 0.9999 बार. तो ये आंसर करेक्ट नहीं है. अप्रोच कैसे करेंगे आप बताओ. पहले तो x ले लिया हमने 0.9 बार. अब क्या करें. Sir, we can take as 10x equals to 09.99. 9.9 बार है ना 10x. Yes sir. है ना. This was 0.99 बार है ना. So now Yes, we'll sir. subtract 10x में से हम x को subtract करेंगे 0.9. Yes sir. है ना. So left side में क्या आया. Sir 9. 9x. और right side ये तो कैंसिल हो गया. Sir 9. 9 ओनली है ना. तो x कितना हो गया. 9/9 is 1. ठीक है. बट p/q की फॉर्म में पूछा था. Therefore 0.9 बार is 1/1. Sir, is it because it's infinitely close to 1? हाँ जी. देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है. But fact is, when I'm saying 0.99999 so on infinite times. Yes, sir, meaning that there is an infinitely small distance between it and 1. हाँ जी. And जब infinitely small होता है तो then we take it as 0 difference. Yes, sir. Sir, I think 0.9 bar will be 9 upon 9 in p/q form. हाँ, 9/9 which you simplify it becomes 1/1. Oh, yes. ठीक है जी. डन. क्वेश्चन. Yes, sir. Yes. Done, sir. Good. Simplify. चलो जी सिंप्लीफाई करें इसे. तो इसमें आप पहले 0.55 बार है ना, इसको p/q की फॉर्म में लिखें एंड देन सिंप्लीफाइड. नन्ना बेटा मेरे को p/q की फॉर्म में आंसर चाहिए. हाँ जी, वेरी गुड रेहान.
Devesh, check out again. हाँ जी, गुड वन शांतनु, अयान। इज इट करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। अयान आपका गलत है बेटा। So for everyone, this is basically, I'll say x is 0.55 bar. I'll say 100x is 55.55 bar. है ना? इन दोनों का हम डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। बड़े में से छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता ना, इसलिए हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। सो आई एम गेटिंग 100x is 55.55 बार, x is डेसिमल के नीचे डेसिमल 55 बार। सो आई एम गेटिंग 99x is 55, x is 55 by 99, है ना। ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर डालेंगे, ये सिंप्लीफाई होकर 5/9 आ गया हमारा, है ना। तो 5/0.55 बार इज 5/5/9। जो आपका डिनोमिनेटर्स है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। सो दिस विल बिकम 5 into 9/5 विच इज 9। p/q फॉर्म बोला था तो 9/1। ठीक है जी, डन डन। Sure. तो ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है, ये आप लिख ले। 0.a बार, दिस इज a/9, है ना। If I'm saying 0.ab bar, this is ab/99. 0.abc bar, this is abc/999। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। So if I'm saying 0.38 bar, ये किसके इक्वल होगा बेटा? 38/99। 38/99। If you have something like 99 recurring, तो 99 recurring हम 99 recurring को सिंप्लीफाई कर लेंगे 9 recurring में ही ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यू कैन डू इट। तो Okay. ऊपर में जो क्वेश्चन था 0.55 रिकरिंग, दिस इज सेम एज 0.5 रिकरिंग। Okay, sure.